सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आपने कुछ बायोग्राफी लिखी होंगी। अब आगे बात करते हैं। आप अगर देख रहे हैं, दुनिया की व्यवस्था को समझ रहे हैं, तो एक प्रोविज़न होता है मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी, यानी किसी भी चीज़ के या तो सेवा या फिर बिक्री से एकाधिकार को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। सो अप्लाई मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी। UNCTAD, United Nations Convention on Trade and Development, is requested to use my earned income and capital wealth to acquire YouTube company and gift it to UNESCO. Respectively, other countries' representatives could put forward this proposal to World Bank, IMF, World Trade Organization, so that their share could be used to acquire YouTube and gift it to UNESCO, so that world heritage and cultural sites could be conserved effectively. It's an opinion, and I request for inquiry and prosecution to the suspect to be detained and punished whoever had deleted my typed text documents. I have submitted my application to World Intellectual Property Organization also, to the head of the UNESCO also, and requested to UNHRC personals also. After submission of my report to the Cyber Security Police, New Delhi North, I doubt कि जो मुझसे इरादतन दुश्मनी भरी नीयत से तंग करके हंस रहे हैं, उनके मरने पर उनके अपने मातम मनाएंगे। यानी जो हमारे राह में रोड़ा अपना रहे हैं, उनकी दुश्मनी भरी नीयत तय हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। सिद्ध हो जाएगा तो उनको उसका दंड मिलेगा। दंड मिलेगा तो उनका जो अहंकार भरी अट्ठास है वो शांत हो जाएगा। इस तरीके से आप भी सोच सकते हैं कि ज़माने में लोग आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। एक ऐसी संकल्पना मान करके हम लोग चलते हैं। हालांकि कलयुग है, कलयुग में बहुत तरह का उल्टा भी चीज़ होता है, लेकिन अपनी आत्मिक शक्ति को हमें बनाए रखना चाहिए। वाल्मीकि रामायण का पाठ किया है, उसको भी आप हमारे क्लासेस से देख सकते हैं। वाल्मीकि रामायण से संदर्भ लेकर ही तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। ऐसे ही अन्य रामायण हैं जिनका भी संदर्भ की चर्चा की जा सकती है। डिलीट कौन किया मेरी लिखी अप्रकाशित किताब, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। क्या कोई नेता है या कलाकार है, मर्द है या औरत है, पकड़ के मारो पीटो उसको। कौन है मेरी शिक्षा का हत्यारा? क्योंकि किताब को जब हम एडिट करते इस तरीके का धार्मिक ग्रंथ भी बन करके आता, सारा डिलीट कर दिया है। यह सरासर उसकी धिक्कारी वाली मक्कारी है। न्यायिक कार्रवाई करें उसके शनाख्त होने पर उसके खिलाफ। ऐसी मैंने एप्लीकेशन डाल दिया था। आप लोगों को भी अपने डिजिटल डेटा के सिक्योरिटी के लिए प्रयास करना चाहिए। डिजी लॉकर एक सॉफ्टवेयर लाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। डिजी लॉकर की जो प्रक्रिया है या फिर और भी जो चीज़ें हैं, तो ऑनलाइन जो हम लोग इस लर्निंग एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस में डेटा कल्टिवेट करते हैं, उसकी सिक्योरिटी इंश्योर की जानी चाहिए। एक चीज़ और है, इंटरनेशनल एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कमेटी शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विथ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेटरी रूल्स। इसमें क्या है, पीपल migrates from one place to other in search of job. They visit to different country. They, what we can say, perform their duties in different kind of private, public or government enterprises. But their fundamental labor rights, human rights should be protected there also. And safe and equitable availability of social security schemes should be ensured for everyone as per the available mandates of that respective country of immigration. And International Anti-Human Trafficking Committee should be constituted with International Labour Organization regulatory roles. World Bank should adopt everyone and offer living wages throughout the lifetime till natural death of a human, Homo sapiens.
It's another assumption, a proposal which should be considered into the agenda item of discussion. What else could be relevance of all those materialistic development by any country unless and until all those resources are being utilized properly for the sake of the welfare and progress of the humanitarian society. I would like to share my concern that give me my documents because it contains my right worthy acquired intelligence. I have requested WIPO to kindly incorporate a company to retrieve my documents and income incurred through their users by someone unknown with lusty or rageful act against me by stealing those valuables. Kindly help me by receiving shares and after deduction of your 10% service charges, return me the ownership of the company established to protect my rights and respectively return me all of my those intellectual properties right also. I have reviewed a presentation by Ira Tin from WIPO. It's a very good message by the Honorable Excellency who assures for protection of intellectual property rights of the peoples. सामूहिक पाठ कुरान बाइबल गीता रामायण या गुरु ग्रंथ साहिब अपने अपने धर्म ग्रंथ वाणी का विश्व रिकॉर्ड सबसे पहले कौन देश और कब बनाएगा? It is also one of the fundamental natural rights of the individual to protect and conserve and promote one's religious and spiritual heritage and culture and glorify its legitimacy. At personal fronts, I would like to recommend like a gold monetization for ornamentation is requested from RBI against my sovereign gold bonds so that the open market operation could be ensured and money could be what we can say multiplied in productive manner. भक्ति में से भगवान से अपेक्षा होती है. भक्तों शिष्यों मरीजों ने जो श्रद्धा से दक्षिणा या शुल्क दे दिया वही हक का है. जय श्री सीताराम. एक और बात है, गरीब मानसिकता का शोषित देश कैसे बन गया भारत, जिसने दुनिया को लोक कल्याणकारी समृद्ध देश की तरह मानवीय समाज को जीने में मदद करने की सीख दी. क्या सिर्फ सोने की चिन्हियाँ लिखी हैं या वास्तव में ऐसी नियति है कि हमारा देश समृद्ध है और लोगों को समृद्धि के साथ जीने की अधिकार दी गई है. If there are certain lacuna or loopholes that should be identified and interrogated, because crowd mentality, frog mentality, leg pullers and backbiters, people should be dragged, suspended and eliminated from welfare governance system so that righteous and ethically strong people could take charge to implement those policies and acts for the upliftment of the people. There are several prosperous countries providing life protection with provision for free sex options and living wages also. What does it mean? It means there are lack of such what we can say potentials or avenues of exploitation of any person on different such kind of what we can say propaganda or scandals where people are intentionally trapped with purpose for exploitation. If living wages are being provided to the people, they would utilize it for their proper health and well-being. There is human right related request like either stop provokers or tell me his or her identity for field battle face to face. It was since long that I am suffering from this covert war attack by any unknown criminal. Because luminous intensity and fluorescence in optical channel assures photonic transmission even if those internet connectivity is working or not, but this transmission of message is possible if this online interactive optical channel is well established. The notification assures its proper maintenance. So the luminous intensity and fluorescence in optical channel assures photonic transmission. There is a concern that need to be taken sincerely for its proper
रेगुलेशन। यदि विद्युत बल्बों द्वारा निर्मित प्रकाशीय संचरण तंत्र द्वारा घर घर सुरक्षा निगरानी की जा रही है तो सुरक्षा सुनिश्चित होने पर रोज वीडियो फुटेज डिलीट किया जाना चाहिए, है कि नहीं? इससे सिक्योरिटी जो इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और लोगों की लाइफ अगर सिक्योर है तो डे टू डे बेसिस पे इसका रिकैप होने से जो हमारा ऑप्टिकल चैनल के ऊपर जो प्रेशर है कम होगा। अरबों लोगों की ज़िंदगी को अगर मेंटेन करना है तो जहां मान लिया वैसा कोई एविडेंस मिलता है किसी का राइट को कोई वायलेट किया है, वैसे हम लोग फुटेजेस को रखें और उस आधार पर लॉ इन्फोर्समेंट में मदद करें। एक इस पॉइंट पे आप लोग पैनल डिस्कशन कर सकते हैं। वन थिंग मोर है, कॉन्सेप्ट है कि विच कंट्री कुड ऑर्गेनाइज मेन वर्सेज वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेट मैच टूर्नामेंट, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ its utility and implicability. It should be think for protection of and promotion of international youthfulness and sportsman spirits among the youth and adolescent. एक चीज़ और है, अंतर्राष्ट्रीय जल समझौता संबंधित कुछ विचार मंथन कर रहा हूँ। उदाहरण है, चीन भारत मित्रता बढ़ाने के संबंध में विचार है। यदि चीन द्वारा कृषि अनुकूल मौसम जैसे गर्मी या खेती के मौसम में पानी छोड़े जाएं तो भारत चीन संबंध सुदृढ़ मित्रवत बनेगा। बरसात में अधिक वृष्टि के दौरान बाढ़ रोकने के लिए, पानी का बहाव रोकने के लिए चीन भारत जल स्रोत पर बांध बने, यह आपदा प्रबंधन में सहयोगी होगा। दोनों देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय राजस्व भुगतान में परस्पर कुछ मुद्रा के बदले सहायक सेवा एवं निर्माण में मदद की जानी चाहिए। इसी प्रकार अन्य देशों के मध्य मैत्री संबंध सुधरे। यदि किसी तरीके से कोई उत्पादक कार्य हो रहा है जिनसे कि कोई इनकम जनरेट हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होती हैं उनमें एक तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के माध्यम से इसका बैलेंस एश्योर किया जा सकता है। दूसरा चीज़ ये है कि जो कुछ मनी वहाँ पे जनरेट हुआ प्रोडक्टिव वर्क से, तो उसका यूटिलाइजेशन ऐसे प्रोडक्टिव कार्यों में किया जाए जो कि आपदा प्रबंधन में मदद करें, जिससे लोगों की आपसी भाईचारे मैत्री संबंध बढ़ें और इससे एक अच्छा वातावरण का निर्माण हो और अन्य देशों के मध्य भी इसी प्रकार से मैत्री संबंध सुधरे, ऐसी शुभकामना है। एक उदाहरण है ग्रैंड हूबर डैम ऑफ अमेरिका ऑन कोलोराडो रिवर, बिल्ड इन 1930। यह बहुत ही अच्छा एक टेक्नोलॉजी का उदाहरण है जो कि बहुत अच्छी तरह से वाटर रिसोर्स को मैनेज करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट कर रहा है, जिससे बिलियंस ऑफ लोगों को फ़ायदा हो रहा है। इस तरीके के मॉडल्स को आगे भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। 3 मई 2024 में कुछ अपने एक समीक्षा प्रस्तुत करूंगा। अनीति है व्याप्त सरकारी तंत्र में, जब हम इसको स्वीकार करेंगे तो इसको जांच करने की दिशा में पहल करेंगे ताकि नीतिगत निर्णय लिए जा सकें और व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। जानबूझकर कोरोना महामारी संबंधित रिपोर्ट को मिटाया गया तो इससे यह भी साबित होता है कि इससे जुड़ी हुई कोई स्कैंडल्स होंगी, साजिश भी हो सकती है। इसके लिए CBD के अंदर काम किया जाना चाहिए। कन्वेंशन और बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन कंट्रोल्स यूनाइटेड नेशंस के प्रोविजंस हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। सरकारी तंत्र से संपर्क करने पर इस विषय पर वार्तालाप के लिए अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया था। इसके लिए आदमी क्या कर सकता है? सरकारी तंत्र अपने से व्यस्त होते हैं, एक व्यक्ति अपने लेवल पर प्रयास कर सकता है। संभवतः अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देकर उन्हें बचाया गया था। इसके संबंध में भी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं वो लोग जांच करते हैं। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गई। इन सब के माध्यम से ऐसा प्रयास किया जाता है। सतर्कता आयोग हो गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, ताकि इन सारी चीज़ों को, अपराधों को कंट्रोल किया जा सके। एक बात और है कि सूचना छिपाकर या गुप्त पहचान रखते हुए उन लोगों द्वारा जानबूझकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र किए गए। इसमें डार्क वेब एक चीज़ होता है, ऑनलाइन जो इंटरनेट रिलेटेड चीज़ हैं जिनको एक डार्क वेब कहते हैं, जिनको हम नहीं पहचानते हैं। इसमें डेटा इनक्रिप्शन की पार्ट होती है, लाइक हिंदी में स्क्रिप्टेड है, इसका इंग्लिश कोड हो गया, इंग्लिश कोड के बाद फिर बाइनरी कोड हो गई, डेसिमल कोड हो गई,
तो मे बी डेटा के कोड को एनक्रिप्ट करके इन सारे चीज़ों को लेकर के लोग डेटा फिशिंग करते हैं, डेटा माइनिंग करते हैं। इन संबंध में हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए ताकि ऐसे समस्या से हम बचा सकें। मेरे उपार्जित धन के स्रोत की जानकारी मुझे नहीं दी गई। इसमें छल झलकता है। यदि आप काम कर रहे हैं, आपसे उत्पादक कार्य हो रहा है, उससे कहीं कुछ पैसे कौड़ी अगर जनरेट होने की चीज़ है, जिनसे जहाँ धन अगर कहीं उपस्थित हुआ, उपलब्ध हुआ, मतलब प्रोड्यूस हुआ, तो आपको जब उसकी जानकारी दी जाएगी तो आप उन संबंधित अपना उपयोग कर सकेंगे। अब उन सारे उत्पादन पे जो लागत या फिर जो उसमें टैक्स लगेगा, लेवी लगेगा, ड्यूटीज़ लगेगा, वो सारा चीज़ डिडक्ट करके उस व्यक्ति को जानकारी दे दी जाए कि भाई तुमने जो काम किया, तुम्हारे काम से इतना उत्पादक चीज़ हो गया, इसका ये बैलेंस शीट टाइप का चीज़ है, इसमें तुम्हारे टोटल इनकम इतने हो गए, उसमें सर्विस चार्ज इतना लगा उसको प्रोसेस करने का, ऑडिटिंग करने का, अकाउंटिंग करने का, इस सारा चीज़ का। किसी अकाउंटेंट को अगर उन्होंने डिप्लॉय किया होगा, किसी चार्टेड अकाउंटेंट को डिप्लॉय किया होगा, उनकी कंसल्टेंसी फीस उसमें अगर दी गई, टैक्सेज और भी जितने सारी चीज़ें ली गई, उन सारे चीज़ का डिडक्शन का सोर्स दे करके हर एक व्यक्ति के सेविंग अकाउंट रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं उनका ऑटो ऑडिट करवाया जाना चाहिए। गवर्नमेंट द्वारा ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इम्पैनल किया जाना चाहिए कि यदि गवर्नमेंट किसी चीज़ को सर्विलांस कर रही है, मॉनिटर कर रही है कि इससे प्रोडक्टिव वर्क हो रहा है, तो उन सारे अकाउंट्स को, उन सारे व्यक्ति से रिलेटेड जांच को वह किसी को अपने साथ क्या करते हैं, इम्पैनल कर ले कोई ऑर्गेनाइजेशन को, और उस इम्पैनल कर ले सर्विस वाले देने वाले फाइनेंशियल संस्था को, जिनको कि वो सारे फाइल वो ट्रांसफ़र कर दे कि भाई तुम देखो, तुम्हारे पास हमने 1 लाख लोगों की डेटा दी हैं, इन 1 लाख लोगों के माध्यम से जो जो प्रोडक्टिव काम हो रहे हैं, 1 लाख तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और कम कम को करके, तो इससे फाइनेंशियल सेक्टर्स भी काफ़ी स्ट्रेंथन होंगी कि तुम हर एक व्यक्ति से द्वारा किया हुआ जो प्रोडक्टिव काम है, इंटेलेक्चुअल वर्क्स रिलेटेड, उनका तुम अकाउंटिंग करो कि उसने वो काम किया जिससे यहाँ से इनकम जनरेट हुआ, तो यहाँ से इतना इनकम जनरेट हुआ, उसमें ये सर्विस चार्ज लगे आपके डॉक्यूमेंटेशन का, आपने फिर फाइनेंशियल अकाउंटेंट को एक अगर डिप्लॉय किया, उसका जो खर्चा हो गया वो लग गया, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंटिंग के कॉस्ट हो गई, डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के कॉस्ट हो गई, फिर उसमें जो कंसल्टेंट्स को अगर हायर किया गया कि अगर इसमें अकाउंटेंट का ज़रूरत है तो अकाउंटेंट को डिप्लॉय किया गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट को डिप्लॉय किया गया, कॉस्ट अकाउंटेंट को डिप्लॉय किया गया, कंपनी सेक्रेटरी को डिप्लॉय किया गया, और उनके चार्जेस को ऐड ऑन करके, जोड़ करके, जो स्टार्टअप इंडिया की कार्यक्रम है, इसके तहत यह फैसिलिटेशन सेंटर के लिए ऑटोमेटिक प्रयास किया जाना चाहिए। एक आम आदमी अपना काम बढ़ता है, करता है, उसको तो सारी योजनाओं की, नीतियों की, नियमों की जानकारी नहीं होती, लेकिन हाँ, जिनको इनकी जानकारी है, उन सारे संबंधित पदाधिकारी द्वारा ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए कि वो सारा जो उनके अनुसार मापदंड हैं उनका पालन किया जाए, और जो व्यक्ति है उसके अधिकार का भी संरक्षण किया जाए, उसको उसके अधिकार की जानकारी दी जाए, ताकि वह अपने मेहनत द्वारा कमाए गए धन का उपयोग कर सके। यह बात खंडित करने योग्य है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। यह बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। आदमी फल के कॉन्सेप्ट से ही काम करता है और अपने काम का उसको फल मिलना चाहिए। मानवों द्वारा बनाई गई व्यवस्था में ऐसे एक सुधारात्मक पहल किए जा सकते हैं कि सकर्मक कर्म के करने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाए और उनके द्वारा उपार्जित धन को उनको दिया जाए, सारे ड्यूटी, टैक्स, सारे चीज़ डिडक्ट करने के बाद। एक बात और है, वास्तविकता तो यही है कि जिन लोगों ने अपनी बदनीयती और मानवता विरोधी नीतियों के कारण पूरे विश्व को नुकसान पहुंचाया, वे बच गए। सबूतों और दलीलों के अभाव के कारण मानवता के अज्ञात दुश्मन की न तो शिनाख्त हो पाएगी और न ही उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई हो सकेगा। जो लोग पूरे दुनिया को परेशान किए और मानव जनित आपदा से स्थापित व्यवस्था को तहस नहस कर रहे हैं, उनकी जांच की जानी चाहिए और उन्हें सज़ा दिलाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। मैं एक अकेला व्यक्ति क्या क्या कर सकता हूँ? मेरे कार्यों की सीमा पढ़ने लिखने, कॉपी किताब कलम, इंटरनेट और ऑनलाइन इंटरनेट का जो
डिवाइस है इसी तक सीमित है। जिनके पास बल है, संसाधन है, लोग हैं, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इसके लिए जांच कर करके लॉ इन्फोर्समेंट कर सकते हैं। पूरी तरह से संगठित अपराध ने मानवीय सामाजिक व्यवस्था को जकड़ रखा है और दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। यदि यह मैंने अपना एक बात रखा, तथ्य रखा, तो इसकी जांच हो कि जो मैं बात कह रहा हूँ क्या ये सही है कि गलत है, या जो मेरे जैसे हजारों लाखों बुद्धिजीवी हैं वो लोग जो अपना विचार आगे रखते हैं उनका मूल्यांकन हो और उस आधार पर उनकी जो सही सकारात्मक सुझाव हो उनको अपनाया जाए ताकि व्यवस्था और सुदृढ़ हो सके। संभवतः कुछ लोग ऐसे हैं जो रक्षक की खाल ओढ़े भक्षक की तरह देश और विश्व समाज की सेवा व्यवस्था को खोखला कर रहे हैं। तो जो रक्षक की ड्यूटी कर रहे हैं उनका भी ऑडिट किया जाना चाहिए, उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाना चाहिए, उनके वर्क परफॉर्मेंस की जांच की जानी चाहिए कि वो कैसा काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अप्राइजल हो। अगर सही काम कर रहे हैं तो ठीक है, प्रोत्साहित किया जाए, मेडल दिया जाए, पुरस्कार दिया जाए। अगर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं परफॉर्मेंस अप्राइजल के दौरान तो उनको डिमोट किया जाए, प्रमोशन नहीं दिया जाए। इस तरीके के जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रोविजंस हैं जिनसे शुचिता को बढ़ाया जाता है। अगली बात है 2020 के शुरुआत से लिखी अपने अनुसंधान प्रपत्रों में मैंने ऐसे तर्क प्रस्तुत किए थे कि पूरी तरह से इस पैंडेमिक प्रकरण के आयोग निर्मित करके जांच की जानी चाहिए। इस संबंध में कई बार सरकार को रिपोर्ट भेजी, किंतु उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। किसी ने एक बार भी एक्नॉलेजमेंट में नहीं दिया कि आपने जो सबमिट किया है रिपोर्ट, आई एक्नॉलेज द रिसिप्ट एंड यू आर डायरेक्टेड टू मीट Mr. XYZ, any person, if the file was reviewed and forwarded to certain level of hierarchically organized officials, so that I could have contacted them and followed up properly. यह एक बुरी अनुभव हुई, यानी कि उन्होंने मेरी बातों को बचपना भरी समझी या फिर उनका ध्यान नहीं गया, उनको लगा कि नॉर्मल ईमेल कोई आता जाता रहता है, स्पैम ईमेल समझा होगा, ऐसे भी संभावना है। तो इसमें मैं क्या करूं? मैंने सबका ठेका थोड़े न ले रखा है। मैं क्यों कष्ट सहकर अभाव में मुश्किलों का सामना करते हुए भी मानवता शांति की बात करता रहूं। किंतु शांति हमारी आत्मा की पुकार है ताकि लोग साथ मिलकर मानवता समाज में आगे बढ़ सकें, सबका कल्याण हो। गुस्सा आता है तो लोग बोलते हैं कि अब मुझे कुछ नहीं लेना देना है ऐसी गतिरोध भरी समाज सेवा से। वह एक क्षणिक आवेग था। आप उस क्षणिक आवेग में ऐसी बात को बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, खिन्न होता है जब आपका मन। लेकिन फिर जब आप शांति भरे अपने मानसिक स्थिति में आते हैं तो फिर आप अपना समाज सेवा और अपने कार्यों का निर्वाह करना शुरू कर देते हैं। हम लोगों के भी अपने जीवन में इस भावनात्मक उतार चढ़ाव को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ। ऐसा अक्सर होता है, यदि किसी को इज्जत आदर देकर तमीज़ से बात करता हूँ तो मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, शायद ऐसे भी एक विचार होती है। क्योंकि ईगो लोगों का बूस्ट हो जाता है, तुरंत ईगो बूस्ट हो जाता है। जैसे मोटर चलाइएगा घर वाले टंकी में पानी भरने के लिए, तो मोटर चलेगा, पानी तुरंत भर जाएगा, ओवरफ्लो होने लगता है। किसी को अगर इज्जत देते हैं तो आदमी के व्यक्तित्व में 3 चीज़ होता है, ईड, ईगो, सुपर ईगो। उसका सुपर ईगो क्या होता है? बुस्ट होता है। और कुछ लोग के अंदर तुरंत घमंड आ जाता है, लेकिन जो उदार होते हैं उनके अंदर सज्जनता, विनम्रता की भावना आती है। आप अगर रिस्पेक्ट देंगे, नमस्ते सर, तो भी आपको परस्पर रिस्पेक्ट देंगे कि नमस्ते जी, नमस्ते चंदन जी, क्या बात है बताइए। आपका जो नाम है, आपका नाम लेकर के आपसे रिस्पेक्टफुली भी वो बात करेंगे और छल कपट वाला बात नहीं रखेंगे, स्पष्ट तौर पे बोलेंगे बिना अपनी पहचान छुपाए हुए। यदि धर्म और अध्यात्म के प्रचार प्रसार से व्यक्तियों के विकास का प्रशिक्षण देता हूं तो शायद मेरी बातों को बकवास समझते रहे वे दुष्ट मूर्ख, है कि नहीं? क्योंकि नियत ही उनकी खोट है। जो अच्छे लोग हैं, जो इनको स्वीकार करेंगे, वो रिस्पेक्ट देंगे, वो टाइमली पेमेंट फीस का भुगतान करेंगे, कंसल्टेंसी फी का भुगतान करेंगे।
शिक्षा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। आप कभी भी क्लास करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको कोई वस्तु उठा के नहीं दिया जाता। नोट्स हो गया, जैसे नोट्स हो गया या कलम हो गया, ये आपने खरीद लिया, लेकिन इस कलम से क्या क्या लिखा जा सकता है, वह ज्ञान है, वो नॉलेज है, वह आपको गाइड किया जाता है, जिसको आप लिख करके ट्रांसफ़र करते हैं। उनका फ़ोटोकॉपी जेरोक्स आप ले सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में जो ट्रांसफ़र हुआ, यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके लिए ईमानदारी ज़रूरी है कि आपने किसी से सेवा प्राप्त की और आपको उसका फीस का भुगतान किया जाना चाहिए। यदि ईमानदारी से मेरे योगदानों के प्रति कृतज्ञता की सोच विचार होती उनमें, तो मुझे आदर सम्मान देते हुए सीधे सीधे मेरे प्रशिक्षण और परामर्श के लिए मुझे पारिश्रमिक शुल्क देते। कुछ हरामी होते हैं जिनकी नीयत ही खराब होती है। वो आपका अच्छा काम सुन करके भी उल्टा उपहास उड़ाएंगे और स्वयं मेरे ही कार्यों और प्रगति के मार्ग में बाधा और गतिरोध पैदा किए। संभवतः बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के हैं कुछ लोग। यदि उन्हें आदर सम्मान दो तो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यदि समझदारी भरी बात कहो तो गुस्सैल काली कुल्टी भैंस की तरह डाही मारते हैं। यदि मानवीय समाज के उत्थान और समावेशी विकास की परामर्श दो तो मेरा सहयोग करने के बदले उल्टे मेरे विरुद्ध बेवजह के कुतर्क भरे गतिरोध करते होंगे शायद, है कि नहीं? यदि कहीं ऐसा है तो जिस गुट में वो होंगे, जिस समूह में वो होंगे, उस समूह में ही उनका विरोध होगा, आइसोलेट किया जाएगा। अभी मकान का किराया देना बाकी है लगभग 8,000 रुपये। राशन दुकान का भी लगभग 1,000 रुपये बाकी हो गए हैं। आज मोबाइल फ़ोन के जियो सिम का रिचार्ज भी ख़त्म हो गया। उधर HDFC वाला क्रेडिट कार्ड दिया। क्रेडिट कार्ड देता है तो क्रेडिट कार्ड को तो आदमी यूज करने के लिए दिया जाता है, उस पर भी बकाया मांगने के लिए बार बार मेरा सिर खाता है। जितना पैसा दिया उसका 2 गुना 3 गुना करने का बात है 1 साल के अंदर। इस किस तरीके का शोषणकारी नीति है? इन लोगों का नियंत्रण करने के लिए कहाँ सबका आंख अंधा है, फूट गया है, कान में सुनाई नहीं दे रहा है। रेगुलेटरी रोल कहाँ गया? बैंकिंग रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया और सारे संगठन हैं, उनसे अपील है, उनसे निवेदन है कि वह इन सारे व्यवहारों को नियंत्रित करें ताकि आम जनजीवन सुदृढ़ हो सके और उनके जीवन में खुशी और समृद्धि का विकास हो सके। प्यार के फरेब में झांसा देने वाली भाग गई किसी के साथ साली, तभी तो केस करने के बाद भी मुझे संपर्क नहीं किया। ऐसे आए दिन लोगों को आज के समय में अनुभव होता है। कारण क्या होता है? आपका अधिकार कोई दबा करके बैठे हुए, रोके हुए है। आपका अधिकार आपको आर्थिक नहीं दिया, आपके अंदर प्रोस्पेरिटी उसने नहीं देखा, उसका परिवार का दबाव पड़ा, वो किसी और के साथ शादी विवाह करके अपना परिवार सेटल कर ली। तो आप दबाव में आकर के क्या करिएगा? अपने आप को संभालना है और दोबारा आगे उभरने की कोशिश करनी है। यह भी एक इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ बात है। घर वालों से बोला कि मेरे हिस्से का ज़मीन से मुझे दे 2 रुपये, तो यहीं कहीं दिल्ली या आसपास एक अपना घर बना लूँगा, तो अभी टालते रहे, सब अपने मन के करते हैं। ऐसे ही सरकारी पदाधिकारी जिनके पास पैसा है, जिनका देना ही काम है, कर्तव्य है। कागज़ का टुकड़ा तुम जिस पैसा से अगर किसी का जीवन में विकास हो सकता था, सुधार हो सकता था, उसकी मनोकामना पूरी हो सकती थी, और तुम अपने अहंकार को दबाने के लिए, बढ़ाने के लिए उसका अधिकार पे हक मार करके बैठ गए। कैसा व्यवस्था है तुम्हारा? अगर तुम्हारे पास स्टाफ की कमी है, स्टाफ को बहाली करो। लोगों का जो पैसा कौड़ी जो कमाई का है, जो देना हक है, उसका हक हलाल का कमाई उसको दो। क्यों किसी की कमाई पे तुम कहते हैं नाक की तरह कुंडली मार के बैठे हुए हो? जिसका अधिकार है उसका अधिकार दो। इससे समाज में अच्छा व्यवस्था होगा, अन्योन्याश्रय संबंध बढ़ेगा। इधर ऑनलाइन इंटरनेट पर जो खबरें प्रकाशित हो रही हैं, तो आए दिन उनमें भी कहीं ना कहीं लड़ाई की, तो कहीं प्राकृतिक आपदा की खबरें आती रहती हैं। बहुत तरह का चीज़ है। अब लड़ाई की बात हुई तो क्या हुआ? किसी न किसी बात पे 2 लोग के बीच में गतिरोध हो गया, गतिरोध हो गया। ये इधर तन गया, वो उधर तन गया। इसके पास भी बहुत सारे लोग थे, इसके पास भी बहुत सारे लोग थे। इसने अपने लोगों को बहुत तरह आदेश दे दिया, इसने भी अपने लोगों को आदेश दे दिया। अब एक को लगा कि दूसरा आक्रमण कर दिया, तो दूसरा क्या करेगा? एक को लगा कि दूसरा आक्रमण कर दिया तो एक क्या करेगा? वो भी अपना सुरक्षा करेगा। तो बात का लड़ाई हो, लोगों को नहीं बीच में लाया जाए, मध्यस्थता से, प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी, डायलॉग से
सारे मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए। भगवान को भी लगता है कि टाइम नहीं है, भगवान का पूरा दुनिया ब्रह्मांड चलाना है। भगवान भगवान है, उनको पूरा दुनिया चलाना है। आप पूजा पाठ साधना करते हैं तो कभी कभी लगता है कि भाई आपको जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो क्या करें। हमारे ऐसे बहुत सारे भक्त भी हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे जजमान भी हैं जिनको, बहुत सारे मूर्ख स्टूडेंट भी हैं जिनको समझ में नहीं आता है। तो क्या कहेंगे कि भगवान को लगता है टाइम नहीं है, उनकी कृपा अभी नहीं हुई है कि नहीं। कृपा जब हो जाएगा तो आपके अंदर में वह दिव्यता की भावना आ जाएगी कि आपकी समृद्धि और आपको सारा तरीके से विकास होना शुरू हो जाएगा। नहीं तो इतना मंत्र सुनाने के बाद प्रकट होते सच में सपने में जिस फोटो की आभा का ध्यान करता हूँ वही रूप आता भी है कभी कभी। अभी गणेश पुराण का पाठ कर रहा हूँ, इसमें भी नीति शास्त्र, घटना अध्ययन और निर्णय क्षमता विकसित करने से संबंधित कोर्स के टॉपिक दिए गए हैं। आप जो क्लास कोर्स का वीडियो देखिएगा आपको मदद करेगा। ये सारा लॉजिकल रीजनिंग से जुड़ा हुआ हमारा एक्सप्रेशंस है, जिन पे आप विचार करिए, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। उधर मेरा क्लास नोट्स को क्लास का लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले ही कोई मिटा दिया या चुरा लिया। यदि साइबर सेल को जांच में कामयाबी मिलेगी तो मुझे मेरे रिपोर्ट्स की प्रिंटेड हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी ज़रूर वापस कराएंगे। यदि नहीं मिली सब कामयाबी तो मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे में क्या कहा जा सकता है इस बारे में। लेकिन इसी चिंता में हम क्या करें, बैठे रहें कि लॉस हो गया, आगे का काम नहीं करें, यह सही नहीं है। आपके जीवन में भी ऐसी त्रासदी आती हैं, उनसे उबर करके आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मान लीजिए कि खेत का एक फसल नष्ट हो गया तो दूसरा फसल नहीं लगाएंगे क्या? जरूर लगाएंगे, दूसरी बार भी फसल जरूर लगाते हैं। अभी सोचूं कि नहीं सोचूं, अभी परेशान हो रहा हूं तो बाद में अपना नित्य दिन का डिजिटल डायरी लिखूंगा। यह मेरा काम है। हर लोगों का अपना दिन का शुरुआत अलग होता है। खाना पीना नाश्ता करने के बाद लोग अपना अपना काम करते हैं, बीच में ब्रेक लेते हैं, फिर अपना काम करते हैं। तो मैं भी अपना करता हूँ, सभी को करते रहना चाहिए, समय पर विश्राम भी करना चाहिए। एक बात और है भाई कि मोबाइल क्या है, वर्चुअल है, रियल नहीं है। आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो यह क्या है, वर्चुअल है। आप इस वीडियो फोटो को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। वास्तव में इस मोबाइल में मैं थोड़े ना घुस गया, यह मेरा एक प्रतिबिंब है। जैसे आप आईना में फ़ोटो देखते हैं उस तरीके से आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो क्लास का प्रतिबिंब है। हाँ, लेकिन इसमें जो बात कही है वो सारा ज़रूरी वाला है, उससे आप फ़ायदा ले सकते हैं। आप मोबाइल फ़ोन में बहुत खूबसूरत लड़कियों का फ़ोटो देखेंगे, एकदम फैशन शो देखिएगा, और भी बहुत तरह का एरोटिक भी है। लेकिन उसमें ज़्यादा एक्साइटमेंट में उन्हीं के साथ आप उलझ जाइएगा तो दिक्कत है। उनसे अगर व्यक्तिगत संपर्क आपका नहीं है, बात विचार नहीं है, तो उनके पीछे आप उलझ करके मोह माया के जंजाल में फंस जाइएगा। आप जहाँ हैं रियल लाइफ में आसपास में जिन लोगों से हैं उन लोगों के साथ संपर्क बना करके कोशिश करिए मित्रता बनाने का। उन्हीं के साथ आपका सामाजिक व्यवहार सही रहना चाहिए। यह आपके लिए सावधानी वाला बात है जो मैं बता रहा हूँ। मोबाइल में या इंटरनेट लैपटॉप में शादी नहीं होगा, एक्सेप्शनल है। कुछ लोगों का वीडियो कॉलिंग पे बात हो जाता है इंटरनेट से, और भी लोग जुड़ जाते हैं। कुछ लोग ट्विटर पे, कुछ लोग मोबाइल पे, कोई व्हाट्सएप पे, कोई फेसबुक पे जुड़ जाते हैं, तो उनका सही होता है, और भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। लेकिन सावधान रहना है, मोबाइल फ़ोन से लड़का लड़की पैदा नहीं होगा, यह असंभव है कि नहीं। शादी विवाह करने के लिए, प्रगति करने के लिए अपना आर्थिक उन्नति करिए और अच्छा से आपका परिवार बसे, इसके लिए आपको आशीर्वाद, शुभकामना है। कोई कहीं है जो मुझे पसंद करती है और उसके दिल में मेरे लिए प्यार के एहसास हैं, तो वो मुझे खुद ही संपर्क करेगी, है कि नहीं। यदि कोई शिष्या मेरा डिजिटल क्लास अटेंड करेगी तो इसका कोचिंग फीस मुझे भेजेगी, इसके लिए भी प्रचार करना है। यदि नीतिगत तौर पर या सरकारी प्रावधानों के अनुसार मेरे कार्यों के लिए पारिश्रमिक और पुरस्कार के लिए मेरा मूल्यांकन किया जा रहा होगा कहीं, तो मुझे मेरे कार्यों के लिए प्रबंधन परामर्श शुल्क प्रदान किया जाएगा। जो बच्चे लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, उनको इनसे कुछ ज्ञान का बात लगेगा तो वो भी फीस दे सकते हैं, ट्यूशन फी ऑनलाइन पे कर सकते हैं। मैंने अकाउंट डिटेल भी अपना साझा किया है। एक बात और है, कोई है अज्ञात है जिसको हम नहीं जानते हैं,
जैसे मान लिया जाए कि x है, y है, जो मैथमेटिकल फार्मूला है, कोई है एक x अज्ञात है या XYZ है जो झूठा है, तो हर बात को क्या करेगा, झूठलाएगा। बोलेंगे तुम मेरा पैसा लिए हो, बोलेगा नहीं। तुम्हारे पास मेरा कमाई का पैसा बना, तुम मेरा पैसा दोगे कि नहीं दोगे, तो बोलेगा कि पैसा नहीं बना है। सफ़ा मुकर जाएगा, तुरते पलट जाएगा। उससे उन झूठे आडम्बरी आप कुछ भी बोलिएगा तो कुछ लोग क्या करेगा, आपके ऊपर अपना चीज़ दबाएगा कि अरे हम आपसे ज़्यादा तेज हैं, हम आपसे ज़्यादा बलवान हैं, तो आपको दबाने का कोशिश करेगा, आडंबर करेगा। छल कपट करने वाले लोग ज़्यादा हैं आजकल, क्योंकि दुष्ट हैं, बदनीयत है, उनका नियत में खोट है। आपका अधिकार आपको नहीं देना चाहते हैं, उल्टा छीनना चाहते हैं। शातिर है, धूर्त है, भ्रष्ट है, ठग, लूटने वाला, चोर, लुटेरा, हत्यारा भी है, बेईमान है और अन्यायी है। पहचान होने पर सुनिश्चित तौर पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियां उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगी। अकेले अपने कष्टों का सामना करते हुए मैंने जो प्रयास मानवता की सेवा और शांति के लिए की, उसके लिए मुझे मुख पर गर्व है। मैं स्वाभिमान से भरपूर हूँ। मुझे संतुष्टि है कि मैंने इन विपदा की घड़ी में स्वयं की व्यक्तिगत समस्याओं से जूझते हुए भी देश दुनिया के समस्याओं के कारणों और निदानों के बारे में निरंतर सोच विचार और शोध एवं अनुसंधान आधारित लेखन और अभिभाषण का कार्य स्वयं अपने निर्देश में अपनी प्रेरणा से किया है। अभी तक भगवान के सिवा मेरा कोई सीनियर अधिकारी नहीं है। 2018 के बाद अपने से काम कर रहा हूँ। आप लोग भी अपने आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़िए। कष्ट होगा, लेकिन आप अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे। यदि कोई मुझसे संबंधित बौद्धिक सेवाओं को प्राप्त किया है या कर रहे हैं, तो वह मेरी बौद्धिक सेवाओं का ग्राहक हुआ। कानूनन उसे मेरी सेवाओं के लिए मुझे सेवा शुल्क देना चाहिए और इसमें किसी को कोई गतिरोध नहीं पैदा करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। बधाई हो मुझे, धन्यवाद राम जी, उनका कुछ कृपा पात्र मिला। आज इंटरनेट आधारित ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस की चंदन कुमार मिश्र और अपने विद्या वंदना केंद्र डिजिटल कोचिंग क्लासेस की विजिटिंग कार्ड को अपने आसपास के यात्रियों जो लोग थे उनमें वितरित की। कभी कभी ऐसा आभास होता है कि आसपास कई अन्य देशों के प्रतिनिधि भी आते जाते रहते हैं, जैसे कि कनाडा, समोवा, चीन, कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, फिलिस्तीन, पाकिस्तान, अजरबैजान, मंगोलिया, भूटान, इटली, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, सोवियत रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थाओं के अधिकारियों के प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी और सामान्य नागरिक भी। यह अनुमान भारतीय समाज की अतिथि देवो भव की परंपरा की विरासत और विविधता में समरसता एवं भाईचारे को प्रदर्शित करती है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे अब ऐसी आशंका भी होती है कि मेरे विरुद्ध अपनी कुत्सित मानसिकता के कारण कोई अपने शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। शक ही आदमी कर सकता है कि आप लगातार काम कर रहे हैं, आपका कोई अधिकार नहीं मिल रहा है, आपको कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है, तो क्या है, कोई मतलब या तो दुष्ट है या तो धूर्त है, कपटी है, जो एकदम जकड़ करके बैठ गया है, अपना पहचान भी नहीं बता रहा है, या फिर उसका अगर औकात नहीं है देने का तो हट जाए रास्ता से भंचोद। जिसके पास अधिकार है वैसे का बात पहुंचाने दे। क्यों बीच में वो आस्तीन का सांप बन के बैठा हुआ है? अगर कोई फाइल किसी के पास गया और उसका कुव्वत में नहीं है कि उस फाइल पे एक्शन लेकर के आपका अधिकार आपको दे सके, तो उस रास्ता से हट जाए, उसको आगे अधिकारी को फॉरवर्ड करे, जो उस पर काम कर करके आदमी को उनका अधिकार दे सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। सोना की पहचान जौहरी ही कर सकता है। कहा जाता है यथा चतुर्भि कनकः परीक्षन्ते निघर्षण छेदेन ताप ताड़ने तथा चतुर्भि पुरुषः परीक्षन्ते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणि। तो मेरे त्याग, शील, गुण और कर्म की परीक्षा करने वाला व्यक्ति की जो दक्षता है उसके पास फाइल को आगे बढ़ने दे, जिससे कि इनका मूल्यांकन हो और अधिकार मिल सके मुझे मेरा। परंतु ऐसी भी बात हो सकती है कि कोई अपना ही लगने वाला मूर्ख अपनी मूर्खता भरी हट के कारण मेरे विरुद्ध इस हद तक अवरोध उत्पन्न किया कि उसकी पहचान होने पर कहीं मैं उसके विरुद्ध नफरत और घृणा भरी प्रतिशोध के विचारों से उसका नुकसान न कर बैठूं। अब अपना है कि पराया है, आंख बंद करके आप देख सकते हैं। आंख बंद कर लिए तो अपना चेहरा भी, शरीर भी दिखाई नहीं देता आदमी को।
दरवाजे के बाहर दरवाजा गेट बंद है तो कोई आदमी नहीं देख सकता है, लेकिन इस ऑनलाइन डिजिटल इंटरफेस से अगर सूचना कहीं जा रही है वहाँ पे इसको एक्नॉलेज किया जा सकता है, डायरी मेंटेन किया जा सकता है कि भाई आपने जो बात कहा इससे हमारे आसपास के लोगों को लाभ हुआ और आपको हम ऑनरेरियम के रूप में, फीस के रूप में यह सो एंड सो अमाउंट पैसा, जो भी अपना अपना करेंसी है उसमें हम आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यह ईमानदारी का बात हुआ। आप शक्ति में किसी देश के माननीय राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े एकदम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, अरबों खरबों रुपया खर्चा कर सकते हैं देने के लिए, कुछ आपके अंदर ये हो ये नहीं रहा है तो आप काहे लगी हैं? आपसे अच्छा तो नॉर्मल आदमी हो गया जो कि देखा 2 4 5 रुपया दे दिया, जिसका जो क्षमता हुआ। तो शर्म से वैसे लोगों को अपना विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि अपना पावर का उपयोग किस चीज़ में है। पावर का उपयोग है कि आपका पावर का उपयोग करके किसी को उसका अधिकार दे दें, ना कि अपना पावर का खाली सिर्फ आडंबर किए हुए हैं कि हम फलना पोस्ट पर हैं। अरे अपना माथा पर चिपका के चलो अपना पोस्ट रखने से क्या होता है? जो लोग हैं जो काम कर रहे हो उसका अधिकार नहीं दे रहे हो, जिसका जो मतलब राइटफुल जो उसके डिजर्व करता है उसका अधिकार नहीं दे रहे हो, तो तुम काहे लगी हो? अपने आप को देखो। तुम्हारी संस्था के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं वो तुम्हारे ऊपर रिव्यू करेंगे, तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये भी हो सकता है जो अवरोध उत्पन्न किया, कोई अपना या पराया, कोई भी मूर्ख है या धूर्त है जो अपनी मूर्खता भरी या धूर्तता भरी हट के कारण मेरे विरुद्ध इस हद तक अवरोध उत्पन्न किया कि उसकी पहचान होने पर कहीं मैं उसके विरुद्ध नफरत और घृणा भरी प्रतिशोध के विचारों से उसका नुकसान न कर बैठूं। उसे समझना होगा और अपने हट को त्याग कर मेरे द्वारा प्रस्तुत विचारों पर समर्थन और सहयोग का व्यवहार करना होगा। ऐसी भी आशंका है कि कोई बहुत ही संगीन आपराधिक मानसिकता वाला लेकिन साफ सुथरी सामाजिक छवि का व्यक्ति है जो अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए मेरे कार्यों में अनावश्यक गतिरोध पैदा करता रहा है। मेरी अनुभूतियों में उस संदिग्ध अज्ञात व्यक्ति के प्रति अविश्वास का भाव ही मेरे विरुद्ध उसके इस प्रकार के संदिग्ध व्यवहार के प्रति मेरी उचित प्रतिक्रिया है। यह आम आदमी की आवाज होगी। ध्यातव्य है कि लोक कल्याणकारी मानवतावादी समाज नीति किसी की भी बपौती नहीं होती, पैतृक विरासत नहीं होती। कोई भी है जो अपने उपार्जित लक्षणों की उत्तरजीविता के आधार पर अच्छे गुणों को, अच्छे कार्यों को सीख करके आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा काम कर सकता है। हर कोई महापुरुष के रूप में देश दुनिया के विकास में अपना योगदान दे सकता है। यदि विद्या को हत्या किया गया, एक तरीके से ब्रह्म हत्या किया गया, ऐसे विचारों को मेरे मन मस्तिष्क में आने का यह संकेत है कि किसी निर्दोष ब्राह्मण की हत्या की गई है शायद। लेकिन इन गायों की मुख उदासी, श्वानों यानी कुत्तों के व्यंग्य भरे चेहरे के हाव भाव और वायुमंडल में किसी की बेबसी भरी कसक किसकी है? तुम कौन हो, भद्र पुरुष या भद्र पुरुषा? किसके कोप के भाजन बने हो? मुझसे अपनी आत्मा का साक्षात्कार दो, मैं तुम्हारी अनुभूतियां भी लिखूंगा। वे कौन सी दिव्य शक्तियां हैं जो कभी आंखें बंद होने पर भी ब्रह्म मुहूर्त में किसी अदृश्य की आवाज़ सुनाती हैं? किसी सफ़ेद वस्त्र में महिला की छवि झलकती है, लेकिन आंखें खुलने पर, सुषुप्त अवस्था के तंद्रा भंग होने पर स्वयं को अकेला ही पाता हूँ मैं अपने बिस्तर पर। काली रुआंसी भरी बादलों के बीच सिंदूरी लाल आंखों की छवि झलकना किस बात का प्रतीक है? क्या ये कुत्ते और जैव विविधता प्राकृतिक हैं या मानव निर्मित हैं? इन वनस्पतियों की विविधता के रचनाकार विधाता ही तो हैं, या कौन है? वह कौन व्यक्ति है जो अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके किसी को सता रहा है? आंखों पर पट्टी बंधी कानून की देवी का व्याकुल चेहरा किस स्थिति का संकेत देती हैं? एक आंख को अपने ही एक हाथ से झांके और दूसरे हाथ की मुट्ठी बांधे, कांधे से कुछ ऊपर उठाए हुए न्याय की देवी की आभा मंडल या छवि का झलकना क्या सूचित करता है? इस टाइप का एक हाथ से अपनी आंखों को झांके हुए और दूसरा हाथ की मुट्ठी बांधे, थोड़ा नीचे झुकाए, न्याय की देवी क्या संकेत देती हैं?
अगली परिस्थिति है कि आंखों पर पट्टी बंधी और आंसू बहाती हुई दोनों हाथों को अपने कंधों से थोड़ा ऊपर प्रार्थना की मुद्रा में उठाई हुई न्याय की देवी की झांकी क्या दर्शाती हैं। एक और स्थिति है, बिखरी बालों वाली जीर्ण शीर्ण वस्त्रों में यानी फटे फटी कपड़ों में। एक रात मैंने देखा एक भयानक सपना, सपने में आई थी भारत माता, अपना श्वेत वस्त्र में थी वो, उनकी आंखों में पानी था, दिल थाम के बैठो लब पे उनकी एक दर्दनाक कहानी था। बोली, क्या बतलाऊं तुमको बदहाली अपनी बेटा। इसको और आगे लिखा था कविता, वो भी आगे फिर साझा करेंगे, उसका अगर हमारे को पंक्ति मिल जाएगा तो। बिखरी बालों वाली जीर्ण शीर्ण वस्त्रों में आंखों पर पट्टी बंधी हुई रोती हुई देवी, संभवतः देवी या भूत प्रेत चुड़ैल, क्या पता क्या है। यकीनन घुटनों से थोड़ा नीचे तक सफ़ेद गाउन में बिना किसी जूते चप्पल के दोनों पैरों को थोड़ा विश्राम की स्थिति से ज़्यादा फैलाकर खड़ी स्त्री की अदृश्य पारदर्शी आकृति क्या संकेत देती है। जय हनुमान को अमरता का वरदान है। देव देवियों की जयकार हो। भूतों का किससे इंतकाम है, किसके अकाल मृत्यु हुई और कहाँ। फॉरेंसिक जांच और पंचनामे का क्या प्रावधान है। बड़े ऊन के सफ़ेद बर्फ के गोले सी ऊपर सिर्फ आदमी के काले चेहरे का सिर दिखाई देता हुआ हवा में गुब्बारे की तरह हिंडोले खाता हुआ प्रतिबिंब किस प्रजाति का हो सकता है। मेरा काम शोध और अनुसंधान आधारित लेखक का है। अपने लिखित और मौखिक बौद्धिक अभिव्यक्ति में मैं अपने आभास, अनुभूति, विचार, मंतव्य, कल्पना, मौलिक भाव, उपदेश, तर्क, विन्यास, व्याख्या, गद्य, पद्य, गल्प, कहानी, छंद, कविता, टिप्पणी, संकल्पना, परिप्रेक्ष्य, प्रतिवेदन, आलेख, आवेदन, अपील, अनुमान, निष्कर्ष, संभावना, अवलोकन, प्रश्नोत्तरी, सारांश, वैज्ञानिक सिद्धांत, संस्मरण, कार्य, प्रगति, योजना एवं प्रतिवेदन, प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट, संगठन सूत्र, जॉब डिजाइन एवं अनुश्रवण योजना, आध्यात्मिक एवं धार्मिक साक्षात्कार से संबंधित बातें लिखता हूँ। किर्गिस्तान, ईरान, यूक्रेन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बोलिविया, बेलारूस, जॉर्डन, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, यूनाइटेड अरब अमीरात और अन्य देशों के भी एम्बेसी कोऑर्डिनेटर्स या डिप्लोमेट्स भी भारत में अपनी डिप्लोमेसी करते हैं। भारत सरकार द्वारा सबको अतिथि देवो भव रूप में सहयोग किया जा रहा है। मोजाम्बिक, नाइजीरिया, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, फिनलैंड, चाड, चेचन्या, कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया के भी आगंतुक हैं। मैसेडोनिया की अपनी अलग कूटनीतिक रणनीति है। ऐसे ही अन्य देशों के बारे में पढ़िए, देखिए, सोचिए। देश की राजधानी और देश की मुद्रा और देश की भाषाओं के बारे में आगे आप लोग लिखें। यह आज का होमवर्क हुआ। गुड लक, गॉड ब्लेस यू।